तो हेलो हेलो गाइस, आज जो है हम लोग करेंगे इंग्लिश वन का एकदम लास्ट रिवीजन। ठीक है। एंटम फाउंडेशन के लिए, ठीक है। एंटम फाउंडेशन। ओके। तो पहला है पैसेज सेंट्रिक क्वेश्चन। तो पैसेज सेंट्रिक क्वेश्चन अभी हम लोग पैसेज मतलब कि पूरा पैसेज एक ही बारे में नहीं पढ़ेंगे। जिस जिस क्वेश्चन में भी पैसेज का जरूरत पड़ेगा उसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम लोग पैसेज को पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो, which word means an idea or representation of a particular type of person or thing। इसका आंसर जो है, इसका आंसर बन जाएगा स्टीरियोटाइप। What does the system to trap fish in the lake Konda area signify। इसका जो है, इसका आंसर बन जाएगा टेक्नोलॉजी के एंड इंजीनियरिंग यूज्ड बाय एबोरिजिनल्स। What was the function for conical basket। What was the function for conical basket। अब conical फंक्शन, conical basket का फंक्शन क्या है वो मैं दिखा देता हूँ पैसेज से। एक सेकंड। वो कॉनिकल बास्केट वाला चीज़ कहाँ गया। There is a place 40 kilometers northeast of Portland, Victoria, which makes for an unusual visit. It is Lake Conda. Here are the few found remains of Aboriginal settlement. The circular stones based on several hundred herds, rock-lined water channels, and stone tools clipped from rock. Not normally found in the area. One of the attractions of Lake Conda long ago was its fish. And the most startling evidence of Aboriginal technology and engineering to be found are the systems built to trap fresh fish। सॉरी। देख सकते हो ये है वो मतलब कि 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। वाटर courses has been had been constructed by redirecting streams, by building stone sites, and even scraping out new channels. A strategic spot, they piled the rock across the water resources to create water and build funnels to channel eels and fish into conical baskets। ये यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पर अगर ये वाला लाइन अगर हम लोग ठीक से पढ़े, at strategic spots they piled rocks across the water courses to create weirs and build funnels to channel eels and fish into conical basket। तो यहाँ पर conical basket जो है to catch eels and fish हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिर which word in the passage means a low dam built uh, built across the river to raise the water level, ये हो जाएगा where। ठीक है। द वर्ड ब्लफ इन द पैराग्राफ मीन्स, यहाँ पे देख सकते हो एक ब्लफ बोल के एक वर्ड था। ऑन द ब्लफ्स ओवरलुकिंग द लेक द स्टोन सर्कल्स आर ऑल दैट रिमेन्स ऑफ एंशियंट ड्वेलिंग्स। ठीक है। यहाँ पे ये वाला बन जाएगा ए स्टीफ क्लोफ ए लाइन, ओके लो लाइन, ये वाला ये स्टीफ क्लिफ ओवरलुकिंग ए प्लेन और बॉडी ऑफ वाटर, इसका आंसर बन जाएगा। The word nomadic means permanently settled in a particular place, semi-settled in a particular place, depending on water bodies for livelihood, या फिर living by traveling from place to place। इसका आंसर nomadic का आंसर बन जाएगा living by traveling from place to place। ठीक है। queries for, ठीक है, queries for ये हो जाएगा collecting stones। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम लोग अगर देखें, आ गया वेन बीट फर्नेस, मैं यहाँ से फिर से दोबारा पढ़ना चालू कर रहा हूँ, ठीक है। Funnels to catch eels and fish into conical basket. This is an eel fishing technique which was hardly changed to the present day. Besides some of the larger traps, there are outline of rectangle stone. The bluffs overlooking the lane stone circles are all that remains of ancient dwelling. Not all of the stones were quarried locally. The huts vary in size, but all have caves for doorways located on the lee side away from the prevailing wind. One theory is that the stone wells were only waist to shoulder high, with the top rooted by branches and possibly packed with mud. The site presents a pictures of semi quite different stereotype of a nomadic। अरे भाई वो किधर है, क्वेरीज किधर है।
यहाँ से तो मैं खुद ही पर हाँ, यहाँ से तो मुझे क्वेरी नहीं दिखा। अच्छा, यहाँ पे देख सकते हो मुझे मिल गया। शायद से वो थोड़ा सा मतलब कि लाइन मिस हो गया था। नॉट ऑल ऑफ द स्टोन्स वेयर क्वेरिड लोकली, मतलब कि क्वेरीज के साथ जो है कलेक्टिंग स्टोन्स का ही वो मेल खा रहा है। ठीक है, वो अब बता रहा है कि लोकेटेड जो है वो कौन सा टेंस है, ये पास्ट टेंस है ओबियसली। Consider the sentence from the passage. This is an eel fishing technique which was hardly changed to the present day. What do you understand from this? ठीक है, ईल फिशिंग टेक्निक which was hardly changed from the present day, इसका जो है वो बन जाएगा ईल फिशिंग टेक्निक इज हार्ड टू फाइंड इन प्रेजेंट डे, जो कि गलत। ठीक है, टेक्निक हैज चेंज्ड गलत, डिफिकल्ट टू कैच गलत, ईल फिशिंग टेक्निक हैज नॉट चेंज, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, Why did aboriginals prefer the lee side for doorways? ठीक है, aboriginal preferred for better fishing technique, to avoid wind, to avoid nomadic hunter gatherer, या फिर for better visibility। एक बार देख लेते हैं। aboriginals preferred, एक सेकंड, ये लास्ट पे ही था मुझे याद है। ठीक है, यहाँ से दोबारा पढ़ते हैं। वर्ड टू चैनल eels into conical baskets. This is an eel fishing technique which was hardly kept to the present day. Besides some of the larger traps, there are the outlines of the regular stone-lined pools, stone-lined ponds, probably to hold fish and keep them fresh. On the bluffs overlooking the lake, stone circles are the remains of ancient dwellings. Not all of the stones were quarried locally. The huts vary in size, but all have gaps for doorways located on the lee side. अच्छा, यहाँ पे देख सकते हो, the huts vary in size, but all have gaps for doorways located on the lee side away from the prevailing wind। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया था, यहाँ पे जो बोला गया है, यहाँ पे बताया गया है कि एबोरिजिनल्स प्रेफर द ली साइड फॉर डोरवेज, इसका जो है टू एवॉइड विंड आंसर बन जाएगा। ठीक है, ओके, फिर हम लोग चलते हैं 11 से 15, ये वाला जो मतलब कि टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन के ऊपर क्वेश्चन हमको करने हैं। ठीक है, पहले वाले ब्लैंक पे क्या बैठेगा, तो पहले वाले ब्लैंक का हम लोग पढ़ लेते हैं। कॉलर और मेडलॉय सर्विसेज के भीतर ये कॉल है। ठीक है, हेलो मेडलॉय सर्विसेज ने बोला डैश मेडलॉय सर्विसेज, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। थैंक यू फॉर कॉलिंग मेडलॉय सर्विसेज, हाँ हो सकता है। लॉन्ग टाइम नो सी मेडलॉय सर्विसेज, ये बहुत इनफॉर्मल है। रॉक एंड रोल एट मेडलॉय सर्विसेज, ये भी बहुत इनफॉर्मल है, तो इसका आंसर जो है थैंक यू फॉर कॉलिंग ही बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग थैंक यू फॉर कॉलिंग लिखे तो हेलो मेडलॉय सर्विस ने बोला थैंक यू फॉर कॉलिंग मेडलॉय सर्विसेज। फिर 2 नंबर पे लेट्स कैच अप लेटर, आई विल कॉल यू लेटर, एम आई ऑडिबल टू यू, तो ऑब्वियसली यहाँ पर एम आई ऑडिबल टू यू अगर बैठेगा तो नीचे कॉलर बोलेगा येस यू आर। ठीक है, तो एम आई ऑडिबल टू यू इसका आंसर बन जाएगा। कंप्लीट ब्लैंक। अच्छा, 3 नंबर पे क्या, एम आई ऑडिबल टू यू, येस यू आर, फिर मेडलॉय सर्विस बोल रहा है ग्रेट आई एम किशान, हाउ मे आई हेल्प यू। कॉलर बोल रहा है आई वॉन्ट टू बुक 3 टिकट्स टू स्वीडन। मेडलॉय सर्विस may I ask to be more specific? What class of tickets are you booking? What and when is the travel date? कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। मेडलॉय सर्विस पूछता है हेलो, फिर हेलो के बाद एक बार देख लेते हैं। कैन यू हियर मी, आर वी गोइंग, शुड वी हैंग अप, तो यहाँ पे कैन यू हियर मी बन जाएगा इसका आंसर। फिर 4 नंबर, कैन कहा गया, हेलो कैन यू हेयर मी, फिर कॉल जो है वो कट जाता है। फिर कॉलर दोबारा फ़ोन करता है, हेलो आई हैड कॉल्ड जस्ट अ वाइल बैक, द कॉल वाज डैश। 4 नंबर पे क्या बैठेगा, द कॉल वाज टोल्ड ऑफ, कट ऑफ, कॉल्ड ऑफ। ठीक है, इसका आंसर जो है ये कट ऑफ बन जाएगा। फिर 5 नंबर, 5 नंबर पे पूछ रहा है आई वॉन्टेड टू बुक इकोनॉमी टिकट्स फॉर द सेकेंड 22nd of this month, प्लीज़। All right, we can offer you premium discounts if you are a rewards card member. Could you share the details of the fare? I think your network has issue. Your voice skips. मतलब कि वॉइस जो है वो कट रहा है। ठीक है, वॉइस ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली गोइंग बर्ड्स है, कटिंग ग्लास या फिर ब्रेकिंग अप, तो इसका आंसर ब्रेकिंग अप बन जाएगा। ठीक है, तो वहाँ तक था, तो लास्ट का एक लाइन है वो भी पढ़ लेता है। योर वॉइस की इज ब्रेकिंग अप, सॉरी आई विल कॉल यू लेटर देन, नो प्रॉब्लम थैंक्स फॉर कॉलिंग। ठीक है, तो यहाँ पे 11 से 15 वाले क्वेश्चन भी हम लोग कर लिए हैं। यहाँ पे देख सकते हो डैश द हाउस हैड एपियर्ड एनॉर्मस,
नाउ द हाउस तो नहीं होगा, ठीक है। वंस द हाउस एट अपियर्ड एनोनमस, तो इसका आंसर वंस बन जाएगा। फिर 2 नंबर ऑप्शन पे बता रहा है वंस द हाउस एट अपियर्ड एनोनमस। यहाँ पे वंस तो अभी नहीं होगा क्योंकि वंस ऑलरेडी एक बार हो चुका है। अच्छा, ये ऐसा भी कोई भी बात नहीं है, ठीक है, देखते हैं। डैश द न्यू ग्रे बिल्डिंग टुवर्ड अबव इट लाइक अनफ्रेंडली जायंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर नाउ बिसाइड द, यहाँ पर ऑब्वियसली नाउ ही होगा। ब्लैंक 3 के लिए क्या बोल रहा है, द ओल्ड नगा ट्री, ठीक है। द ओल्ड नगा ट्री नाउ इट्स ड्राई, ओके नाउ तो नहीं होगा। द ओल्ड नगा ट्री वंस इट्स ड्राई ब्रांचेस टुवर्ड इटर्निटी, यहाँ पर जो है स्ट्रेच इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ब्लैंक 4 के लिए बता रहा है stretched its dry branches, eternity covering the roof with sickly yellow leaves. A funeral crow perched croaking on a wire, ठीक है। यहाँ पे perched इसका आंसर बन जाएगा। और यहाँ पे ब्लैंक 5 पूछ रहा है, ब्लैंक 5 बता रहा है कि एज आई अप्रोच्ड डैश शेडो स्टेयर्ड, ठीक है। फर्टिव शेडो शेयर्ड, यहाँ पे ना वंस ऑप्शंस जो है वो भी दिया गया है, ओके कोई ना। यहाँ पर फर्टिव बन जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे ब्रेकअप अनेबल टू हेयर वेल, ब्रेकअप अनेबल टू हेयर वेल जो कि सही है। कॉल अप टू गेट बैक जो कि गलत है, ठीक है। हैंग अप पिक अप द कॉल गलत है। होल्ड ऑन टू बी लाउड एंड क्लियर, ठीक है। होल्ड ऑन टू बी लाउड एंड क्लियर नहीं, ये भी गलत है, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं, यहाँ पे एक मैचिंग दिया गया है, ठीक है। एसेंट्रिक, डेट, चेंज, कॉन्सिक्वेंस, बिहेवियर, व्यू, सीनिक, वेलकम, फार रीचिंग, क्लोजिंग, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग इसको मैच करते हैं। तो एसेंट्रिक डेट तो नहीं होगा, एसेंट्रिक चेंज भी नहीं होगा, एसेंट्रिक कॉन्सिक्वेंस, एसेंट्रिक बिहेवियर, एसेंट्रिक व्यू, ठीक है। ओके, तो क्लोजिंग डेट हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो है वो 29 पे बैठेगा, पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर हम लोग मतलब कि आसानी से वो कर सकते हैं, मतलब कि क्वेश्चन का यहाँ पर जो ऑप्शन है उनको हम लोग आसानी से ये कर सकते हैं, ठीक है। वेलकम, वेलकम, एसेंट्रिक तो बिहेवियर बन जाएगा, ठीक है। सीनिक व्यू बन जाएगा। फार रीचिंग डेट, नहीं, फार रीचिंग डेट डेट तो ऑलरेडी बन गया है। फार रीचिंग चेंज या फिर फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस, वेलकम कॉन्सिक्वेंस, वेलकम कॉन्सिक्वेंस होगा क्या? अरे भाई 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 भाई, फार रीचिंग चेंज या फिर फार फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंस देता हो और वेलकम चेंज देता हो, ठीक है। इन दोनों में वेलकम और फार रीचिंग में अगर कोई सा भी गलती हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ये आपके लिए भी टास्क है कि मेरा गलती ढूंढो, मैं कहाँ पर गलती किया हूँ। मुझे इतना लगता है मैं एक गलती कर रहा हूँ, ठीक है। बस एक बार क्रॉस चेक कर लेना। तो यहाँ पर मैं आंसर्स मार्क कर देता हूँ। सीनिक हो जाएगा, व्यू व्यू बन जाएगा 5, वेलकम बन जाएगा, वेलकम बन जाएगा 27 वाला चेंज, ये आई गेस वेलकम कॉन्सिक्वेंस होगा, ठीक है। वेलकम कॉन्सिक्वेंस ये 27 बन जाएगा और फार रीचिंग चेंज ही बन जाएगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन पे कहीं पर भी गलती हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताना प्लीज़। वेलकम दिया है 3 नंबर वाला, फार रीचिंग दिया है 28, 2 नंबर वाला, और ओके फार रीचिंग 2 नंबर वाला दिया था, और क्लोजिंग डेट दिया था, ठीक है। क्लोजिंग डेट का आ गया 29/1। देयर आर 8 डिप्थोंग्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज जो कि सही है। क्लस्टर इज नॉट पॉसिबल, ऑब्वियसली ये गलत है, क्लस्टर जो है वो पॉसिबल होता है, वो फॉल्स बन जाएगा, ठीक है। इवन दो इट रेन्ड अ लॉट वी वेंट आउट, इवन दो इट रेन्ड अ लॉट वी वेंट आउट, यहाँ पे बता रहा है कि कॉन्जंक्शन क्या है वो फाइंड करने के लिए यहाँ पे कॉन्जंक्शन इवन दो बन जाएगा।
यहाँ पे आई हैव ए स्मॉल कैट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो स्मॉल जो है कुछ ना कुछ चीज़ों को मॉडिफाई कर रहा है, और मैं क्वालिफायर के टाइम पे बोला था अगर वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो एडवर्ब, ठीक है, क्योंकि वर्ब एडवर्ब, और अगर वर्ब के अलावा कुछ भी चीज़ को मॉडिफाई कर रहा है तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो इसका जो है आंसर एडजेक्टिव बन जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट प्रोनाउन। प्रियास मॉम आस्क्ड डैश टू क्लीन द गैराज। प्रियास मॉम आस्क्ड हर टू क्लीन द गैराज, ठीक है। चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। आई वॉज born इन द ईस्ट, ठीक है। चूज द ओके। यू कैन लुक अप फोन नंबर्स, लुक आफ्टर फोन नंबर्स, लुक अप टू फोन नंबर्स, लुक इन फोन नंबर्स। यू कैन लुक आफ्टर फोन नंबर्स इन द फोन डायरेक्टरी, यहाँ पर लुक आफ्टर बन जाएगा। सॉरी आई एम लेट, माई व्हीकल रेन आउट ऑफ पेट्रोल। शुड आई बी हैप्पी अबाउट दिस, यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी ढूंढने के लिए बता रहा है तो यहाँ पे शुड बन जाएगा। ड्राई वुड शुड बी शोव्ड इन टू द माइटी बोल्डर, यहाँ पे दोबारा मॉडल ऑक्सिलरी ढूंढने के लिए बता रहा है तो यहाँ पर भी शुड बन जाएगा, ठीक है। वी विल बी वॉचिंग द न्यूज़ एट 9, ठीक है। आई विल बी बैक बिफोर संडे। माई ग्रैंड फादर राइट्स टू मी एवरी मंथ। द सेंटेंस शी हैज़ लिव्ड हेयर ऑल हर लाइफ इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब कि वो बंदी जो है यहाँ पर बहुत सालों से रह रही है, अभी तक रह रही है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये ट्रू बन जाएगा। पीटर एंड हिज फ्रेंड्स गोइंग टू ए मूवी, इन द सेंटेंस देयर इज सब्जेक्ट वेरी गलत। द गैगल ऑफ गीस इज वेरी लाउड। द इन ए प्लूरल वर्ड वी डू नॉट एड द फॉलोइंग साउंड, के साउंड, ठीक है। इनकरेक्ट प्लूरल ढूंढने के लिए बता रहा है तो स्पाई स्पाइस या फिर हॉक्स हॉक्सेस, हॉक्स हॉक्सेस जो है सही है। स्पाई का जो है प्लूरल प्लूरल ऐसे बन जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये वाला आंसर बन जाएगा। पार्क इज प्रोनाउंड एज फर्क, यहाँ पे देख सकते हो अगर हम लोग पार्क को बार बार प्रोनाउंस करें, पार्क 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 पार्क, यहाँ पर एक एच साउंड आता है, ठीक है। PHARK, यही पार्क का प्रोनाउंसिएशन होता है अगर हम लोग मतलब कि पूरा डिटेल में प्रोनाउंसिएशन इसका लिखे तो यहाँ पर ये वाला भी इसका ट्रू आंसर बन जाएगा। इन दिसंबर वी विल हैव बीन मैरिड फॉर 30 years, ठीक है। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ए चेयर एन ऑस्ट्रिच ए ब्रेड ए ईयर, यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन जो है ए ब्रेड बन जाएगा, ठीक है। तो इतना ही था आज के लिए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी का वीडियो भी जल्द से जल्द आ रहा है, मुझे पता है ये लास्ट डे है आज, ठीक है। तो और ज़्यादा दिन नहीं होगा एकदम। सोचो कि 6 बजे तक सारे वीडियोज़ आ जाएंगे, ठीक है। 6 बजे तक सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियोज़ आ जाएंगे। तो यही था आज के लिए, बाय। अगले वीडियो पे मिलते हैं।